माय चैनल एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। शालोम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रेवलेशंस चैप्टर्स। सो आज रेवलेशन चैप्टर 1 का पार्ट 1 रहेगा एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड बिकॉज इस रीजन के लिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला था। आई रियली बिलीव दैट गॉड हैज अ पर्पस इन माय लाइफ टू रीड revelation, to know revelation more, and to spread the gospel and to spread the things that is going to happen through YouTube channel. So I started my YouTube channel, and this was only the reason I started YouTube channel. So I want you to tell about Revelation chapter 1 part 1 to you right now today, and you will be able to, I bless and I pray in the name of Jesus that you will be blessed by watching this video. So without the further ado, let's get started with the video. Before that, let's pray. Father, in the name of Jesus, we pray in the name of Jesus that today we have started our revelation. Today will be Revelation chapter 1 and part 1. Just bless us and give us an understanding so that everyone will be able to understand and they will be saved. People, those who are watching right now or who will be watching later, let the presence of Holy Spirit be with them and they will be able to understand revelations and they will be able to know the things that God is going to do and the things that what is going to happen. So thank you, Father, for this time. Thank you for your love. You are such a good God. You are so compassionate, God. I give you all my glory, honor, and praise belongs to Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. So today is the first chapter of first part of Revelation, and I'm really super excited to just spread this word to every single person who is going to see this video. सो फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज दैट हम क्या करेंगे, हम लोग ये पढ़ लेते हैं, हम पूरा चैप्टर इसको पढ़ लेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1 को पढ़ लेंगे इसको, एंड आई विल जस्ट राइट नाउ आई विल जस्ट पुट इट डाउन एंड यू विल बी एबल टू सी रेवलेशंस के पूरे चैप्टर्स के जो वर्ड है वो अभी सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, एंड देन यू कैन ऑल्सो रीड और यू कैन हैव योर बाइबल एंड यू कैन रीड. So basically I'm going to read Revelation chapter 1 मैं रीड करने वाली हूँ. मे बी आई विल बी रीडिंग today is the half one, so basically I will read the half itself. हम read करेंगे up to 5 वर्स हम करेंगे जब तक जॉन जब यीशु मसीह से इनकाउंटर होता है तब तक हम इसको रीड करेंगे. एंड मैं किंग जेम्स वर्जन बाइबल यूज़ कर रही हूँ और मैं अपना बहुत ही सिंपल गुड न्यूज़ बाइबल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गुड न्यूज़ मुझे इजी लगता है और इज एबल टू अंडरस्टैंड. और जिसको इंग्लिश थोड़ी कम बहुत ऐसी ऐसी वाली इंग्लिश आती है, नॉर्मल वाली, तो आप अगर बाइबल को एग्जैक्टली पूरी तरह अच्छी तरह से समझना चाहते हो इंग्लिश में, तो गुड न्यूज़ बाइबल जो है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ईजी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. तो मैं अभी यूज़ करूँगी रीड करने के लिए किंग जेम्स वर्जन बाइबल. मेरी ये काफ़ी पुरानी बाइबल है जो मेरे मेरे कजिन ब्रदर ने दी थी मुझे, और ये मैं इससे रीड करूँगी. और उसके बाद जितने एक्सप्लेनेशन जो होंगे वो मेरे गुड न्यूज़ बाइबल से होंगे. तो आप अपनी बाइबल यूज़ करो, किसी भी लैंग्वेज की बाइबल यूज़ करो, आप जो भी बाइबल यूज़ करो, बट यू स्टे हियर, यू just watch and you just listen what God is going to speak right now. So we are going to read. Let's get started. We are going to read Revelation chapter 1 और verses मैं बताते जाऊंगी, जहाँ मैं रोक दूंगी वहाँ आप लोग भी रुक जाना. The revelation of Jesus Christ. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servant things which must shortly take place, and he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ and to all the things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Greetings to seven churches. John, to the seven churches which are in Asia. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from seven spirits who are before his throne, and from his Jesus Christ, the faithful witness, the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sin in his own blood,
and has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, and they also who pierced him. And all the tribes of the earth will mourn because of him, even so. Amen. I am Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Vision of the Son of Man. Verses 9. I, John, both your brother and companion in tribulation and in kingdom and in patience that Jesus Christ was on the island that is called Patmos for the word of God and for testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord day, and I heard being me a loud voice as of trumpet, saying, I'm Alpha and the Omega, first and the last. And what was see, write in a book and send it to seven churches which are in Asia, to Ephesus, to Samaria, to Pergamum, to Thyatira, to Sardis, in Philadelphia, and to Laodicea. Then I turned to see the voice, and it spoke with me, and have done. I saw seven golden lampstands, and in the midst of the seven lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with golden hand. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like a fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had to his right hand seven stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. And when I saw him, I fell at feet as dead. But he said to his right hand on me, and saying to me, do not be afraid, I am the first and the last. हाँ, तो हमने वर्स वर्सेस मैंने अभी पढ़ा है up to 17. I have read right now 17 chapter, first chapter के 17 verse तक मैंने पढ़ा है. तो basically this book Revelation is written by Apostle John on the end of the first century के end में जॉन ने इसे लिखा है on Patmos Island. Patmos Island नाम का जो ये बाइबल में अभी मैं पढ़ रही थी, आपने वॉच किया होगा अगर आप पढ़ रहे थे, तो Patmos Island है, वहाँ पर जॉन लिख रहा था एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी. और वो कैसे लिख रहा था, क्योंकि उसको विजन आया था और गॉड गेव हिम हिज विजन, और वो विजन से वो रेवलेशन को लिखा. सो बेसिकली रेवलेशन यू कैन से अपोकलिप्टो है. अपोकलिप्टो मतलब पर्दे हट जाना, रिमूवल ऑफ वेल to uncover something. So revelation is something which will uncover so many things. कितने सारे चीज uncover हो जाएंगे और it just kind of पर्दे हट जाएंगे and you will be able to see the right thing, that Jesus is only the savior, that you have been deceived all your life, and today, that day, you will be able to know that yes, there is only one God, that is Jesus Christ. There is only one living God, one alive God, that is Jesus Christ. And there is, I can say that there is only one God who is really God. So apocalypto is exactly, you can say, ki something which is going to be uncovered or unveiled, removed. There will be a removal of veil. So revelations में जितनी चीजें लिखी है, it has a direct 800 reference to Old Testament. पुराने नियम के में अगर आप रेवलेशन पढ़ रहे हैं, तो रेवलेशन पढ़ रहे हैं तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू रीड द होल बाइबल. आप डायरेक्टली आए, बाइबल उठाए और रेवलेशन को समझने की कोशिश करें, तो ये नहीं होने वाला. ये बिल्कुल ही नहीं होने वाला. ये इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि अगर रेवलेशन को समझना है तो बाइबल ने 800 रेफरेंसेस दिए हैं ओल्ड टेस्टामेंट से. And that's what
दैट्स व्हाट डैनियल का जो फाइनल वीक है, डैनियल का 70 वीक है। क्यों हम डैनियल के बारे में पढ़ रहे थे? बिकॉज देयर आर रेफरेंसेस इन ओल्ड टेस्टामेंट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि बाइबल अगर रेवलेशन को समझना है तो बाइबल खुद इंटरप्रेट करती है अपने आप को। बाइबल खुद अपने आप को इंटरप्रेट करती है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या आपको मतलब कि कोई आउटसाइड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। बाइबल अपने बारे में खुद बताती है। द वर्ड ऑफ गॉड, गॉड हैज़ सेड एवरीथिंग अबाउट हिम। और ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और ये बाइबल में लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ है तो आपको कहीं बाहर की इंफॉर्मेशन के लिए, आउटसाइड, यू डू नॉट नीड एनी आउटसाइड इंफॉर्मेशन। आपको जो भी चाहिए आपको ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ना होगा। मीन्स कंप्लीटली यू हैव टू रीड योर बाइबल, एंड दैट्स व्हाट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रेवलेशन। और भी अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So basically, we will see the two aspect of revelation. There are two aspect of revelation के दो aspects है। और first aspect है is that you need to read your Bible by yourself. मीन्स कि आपको अपने से अपनी बाइबल पहले पढ़नी है। दूसरा एस्पेक्ट है यू नीड टू हियर इट फ्रॉम समवन हु कैन इंटरप्रेट रेवलेशन, है ना। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि रेवलेशन जब मैं रीड कर रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैंने स्टार्ट किया था 2019 में स्टार्ट किया था रेवलेशन को लिखना, और उसको समझने की कोशिश मैंने 2019 से स्टार्ट किया था। लेकिन वो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं बस कलर करके लिखती रहती थी कि हाँ इतने ड्रैगन है, इतने ये चर्च का नाम है, बट आई बेसिकली डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और टू अंडरस्टैंड दैट तब मैंने ऑनलाइन बहुत पास्टर्स की रिसर्च की, और उसके बाद जाके मुझे एक पास्टर साहब मिले, और उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, और उनकी थियोलॉजी, उन लोगों ने बहुत थियोलॉजिकली बहुत स्टडी किया है। एंड व्हाटएवर ही स्टडीड ही सेड, and through him I was able to understand revelation so much। और इतना समझ गए मैं रेवलेशन को, इतना समझने लगी हूँ रेवलेशन को, क्योंकि मैं अभी भी चैप्टर्स लिख रही हूँ। मेरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी। मे बी आई विल बी ऑन 13 और 14 चैप्टर पे हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना मैं समझ गई, और कि मुझे लगने लगा कि आई डोंट वांट टू कीप इट विद माई सेल्फ, आई वांट टू टेल टू पीपल। एंड दैट्स व्हाट मैंने यूट्यूब चैनल खोला, और आज मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ। तो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट द टू एस्पेक्ट्स ऑफ रेवलेशन। फर्स्ट इज दैट यू नीड टू रीड योर बाइबल विद योर सेल्फ, एंड सेकेंडली यू नीड टू हियर इट बाय समवन हु कैन इंटरप्रेट रेवलेशन। क्योंकि रेवलेशन बिना इंटरप्रिटेशन के पॉसिबल नहीं है। आप कुछ नहीं समझोगे। रेवलेशन को इंटरप्रिटेट करना और उसको समझना किसी ऐसे जानकार से जो रेवलेशन के बारे में जानता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ब्लाइंडली कुछ भी अपना कुछ इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते कि मतलब ड्रैगन मतलब ये होता है, और वुमन का मतलब ये होता है। लेटर ऑन आपको एक वुमन आएगी बाय रेवलेशन में, तो वो सबका इंटरप्रिटेशन एक मतलब है। तो वो हम उसको अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो यू नीड समवन हु विल इंटरप्रेट। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ रेवलेशंस। सो बेसिकली मैंने पहले बताया कि जॉन ये लिख रहे थे, और जॉन को विजन आया था ऑन पॉटमस आइलैंड में ऑन द एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। So yes, this was the thing, or I was reading is that Alpha and Omega. So right now we will learn about Alpha and Omega. So in Greek letter अल्फा जैसे हम लोग तो इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, तो तू पहला है और तू मैं ही पहला और मैं ही अंत हूँ, ये हिंदी में है। और इंग्लिश में होता है आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा, आई एम अल्फा एंड आई एम ओमेगा। तो इन ग्रीक लेटर अल्फा का मतलब है पहला लेटर, जैसे ए, इन इंग्लिश में ए है। और ग्रीक में ही ओमेगा का मतलब है last letter, so that is Z, kind of in English may it's Z, so A and Z. So I'm the first letter, I'm the last letter in Greek, I'm talking about Greek. So basically Greek में अगर उसका अल्फा ओमेगा को समझा जाए तो that is the first letter and the last letter. So basically when John was getting this vision, जीसस का लैंग्वेज क्या है? कभी सोचा है? सोचा ही होगा। मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर मुझे यही सारे रेवलेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद पता चला
जीसस का लैंग्वेज था एरामिक, यूज्ड टू स्पीक एरामिक एंड हिब्रू। तो जो जॉन को जो ये विजन आया था वो इट वाज इन एरामिक, सॉरी इट वाज इन हिब्रू, वो हिब्रू में था। तो यीशु मसीह और जो भी विजन उसको आ रहा था, जॉन को आ रहा था, वो हिब्रू में था। देन जॉन ट्रांसलेटेड इट इन ग्रीक। तो जॉन ने ग्रीक में ट्रांसलेट किया और खुदा बाप ने हिब्रू में बोला, फिर जॉन ने उसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया, और लेटर ऑन वी ट्रांसलेटेड इन आवर ओन लैंग्वेजेस, in English, Hindi, and lots of, very different, so many languages we translated. तो अगर हम अल्फा और ओमेगा का मतलब हिब्रू में देखें तो क्या होता है, चलिए तो देखते हैं। अल्फा in Hebrew is Aleph, Aleph. It's Aleph. And Omega is in Hebrew is Omeg is Tav, T-A-V. So Alpha in Hebrew is Aleph, A-L-E-P-H, and it's basically in Hebrew it means sacrificial ox. Ox which is sacrificed, is going to be sacrificed or kept for sacrificing. So that is Aleph. Hebrew में Aleph को Hebrew में अल्फा का मतलब है Aleph, और एलेफ का मतलब है हिब्रू में सैक्रिफाइसल ऑक्स। अब ओमेगा का हिब्रू में जो वर्ड मैंने बताया वो ताव है, T-A-V, और उसका मतलब है हिब्रू में ही क्रॉस। तो आप खुद ही कोरिलेट कर लीजिए। अल्फा का मतलब है सैक्रिफाइसल, और ओमेगा मतलब ताव का मतलब है क्रॉस। सो सैक्रिफाइसल क्रॉस। So Jesus was Alpha and Omega. इसका मतलब है Jesus was sacrificed on the cross. Isn't it excited? जब मुझे ये बात पता चली थी और जब ये मैंने लर्न किया था ना, तो मैंने सोचा वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था और कहीं सुना भी नहीं था। और जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, एंड आई रियली वांटेड टू टेल एवरीबॉडी। सो बेसिकली मैं एक बार फिर बोलूँगी, अल्फा का मतलब है एलेफ which means sacrificial ox, और omega का मतलब है tau in Hebrew which means cross. So sacrifice on the cross, and Jesus was sacrificed on the cross. So that's what he says, I'm Alpha and Omega. He's the first who is sacrificed, he's the last who is sacrificed on the cross. So first and last तो है ही, plus he, उसका exact मतलब ये है कि the one who sacrificed on the cross. Praise God. Praise God. Amen. Jesus, you are so wonderful. You're so wonderful that you died for us. आपने हमारे लिए खुदा बाप अपने जीवन को दे दिया, उस पाप को ले लिया जो आपका था ही नहीं। You were sinless, और आपने हमारे पापों को ले लिया, हमें बचा लिया। So that today during this church age, अगर हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, we accept you as a personal savior, we are completely instantly we are saved. Isn't it? We are privileged, we have got something, हमें वो चीज़ मिल रहा है ना, we don't deserve it, sir. Someone comes and he died for us, he died for our sins, और उसके बाद वो इतना easy कर दिया। आप ओल्ड टेस्टमेंट जाके पढ़िए, अगर ओल्ड टेस्टमेंट पढ़िए स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोसेस, एरोन, कि अगर खुदा बाप के उस एरिया में जाना होता था तो यू हैव टू बी सो होली, यू हैव टू बी सो होली। इसको पार करना है, कितने सारे चीज़ थे, कितने सारे रूल्स थे, डिसिप्लिन्स थे, रेगुलेशंस थे जो इजरायली लोगों के लिए थे, इजरायली लोगों के लिए थे, और प्रीस्ट के लिए थे, और सम टू बी विद जीसस एंड गॉड द फादर, उनके लिए था। तो उनके लिए था, लेकिन यीशु मसीह आ करके सारे बॉन्डेजेस को तोड़ दिया। इसलिए तो मैंने अपोकैलिप्टो बताया, क्योंकि व्हेन गॉड केम, ही जस्ट unveiled it, he just uncovered it, he just gave
he just made everything easy for us. So I'm really super excited to talk about it. और ये अल्फा ओमेगा का मतलब जान के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई थी, और आई होप आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी, और टू नो दैट एग्जैक्टली व्हाट इज कि अल्फा और ओमेगा का एग्जैक्टली मतलब होता है सैक्रिफाइस ऑन द क्रॉस, द वन हु सैक्रिफाइस्ड on the cross. So next we will see first chapter में ही next we will see revelation is split into three parts. तो revelation को तीन चीजों में डिवाइड कर दिया गया है, तीन तरीकों में, तीन एस्पेक्ट्स तो मैंने दो बता दिया आपको, लेकिन तीन तरीकों में, तीन चीजों में उन्हें बांट दिया गया रेवलेशन को, कि ताकि आपको समझ आए कि रेवलेशन में बोल क्या रहा है, क्योंकि रेवलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और the one who is not in spirit, the one who do not know Christ, they, for them it's just a mystery, or for them it's just kind of ये डिज्नी स्टोरी की तरह है, एक कार्टून नेटवर्क का स्टोरी की तरह है, जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो रेवलेशन इज स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज व्हाट जॉन ऑलरेडी हैड सीन. तो जॉन जो पहले देख चुका है वो पहला पार्ट है. सेकंड, what John is seeing right now, and third is what is going to happen, metatau, what is going to happen. Greek word is metatau. तो रेवलेशन तीन चीजों में बढ़ जाता है. पहला, रेवलेशन में पहला कि जॉन जो देख चुका है, दूसरा जॉन जो देख रहा है, तीसरा जो जॉन को बताया जा रहा है कि जो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्टिल नॉट हैपन, जो होने वाला है वो. तो उसको ग्रीक वर्ड में बोलते हैं मेटाटाओ, और मैंने स्क्रीन पे दे देना है आपको, और आपने उसे देख लेना है. सो बेसिकली मेटाटाओ होने वाला है, इट्स स्टिल नॉट. सो बेसिकली वी आर इन राइट नाउ, वी आर इन चर्च एज, हम चर्च एज में है, और इसके बाद देयर विल बी फाइनल 7 year पीरियड. सो यस, तो और मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि रेवलेशन के फर्स्ट से 3 चैप्टर तक दिस इज अबाउट द चर्च. पहले से लेके तीसरे चैप्टर तक चर्च के बारे में है, रैप्चर के बारे में है, लेकिन उसके बाद के जितने चैप्टर है दैट विल बी ट्रिबुलेशन. सो ड्यूरिंग आफ्टर द चर्च एज, चर्च विल नॉट बी देयर ऑन द अर्थ. It will be God will take away, snatch away, caught up away His church. There will be rapture before 7 year of tribulation and after the church age. So basically मैंने आपको बता दिया रेवलेशन तीन चीज़ों में डिवाइड हो गया है. जॉन क्या देख चुका है, जॉन क्या देख रहा है, और जॉन क्या देख रहा है जो होने वाला है, वो अभी हुआ नहीं है. सो बेसिकली मैंने अभी रीड किया था वर्ड ऑफ गॉड में, बाइबल में बताया है कि जॉन का जो ये एनकाउंटर था खुदा बाप से, ये इट वाज द मोस्ट बिगेस्ट एनकाउंटर ऑफ विद जीसस क्राइस्ट. इतना बड़ा इनकाउंटर था, इतना मतलब महत्वपूर्ण इनकाउंटर था वो, दैट ही फेल्ट लाइक डेड. ही जस्ट फेल्ट लाइक डेड. वो काइंड ऑफ बेहोश हो गया होगा, या he was unconscious, or he might have died, we do not know, but he felt like that as he died, क्योंकि इतना ज़्यादा यीशु मसीह का इतना ज़्यादा एलाबरेट, और इतना ज़्यादा जो उनका जो फिगर और जो अपीयरेंस था, उसके कारण वो felt like that, because God is so powerful, we cannot face him, and that's what he felt like that. सो जो परमेश्वर पिता ने रेवलेशन में नहीं, मतलब परमेश्वर पिता ने हमेशा 7 का पैटर्न यूज किया. 7 का पैटर्न यूज किया. Why he chose 7? So there are so many reasons why he chose 7. मैं तो कहूँगी कि ये परमेश्वर पिता का सबसे फेवरेट नंबर है 7. मैं अभी आपको बताऊंगी कि 7 कितनी सारी चीज़ों में 7 है. ओल्ड टेस्टामेंट के सारे रेफरेंस दूंगी. सिंस इट्स पार्ट 1, तो मैं कुछ ही बताऊंगी, अभी थोड़ी देर और है. तो 7 पैटर्न परमेश्वर पिता ने हमेशा अपनाया है अपने लोगों के लिए, एंड दैट 7 पैटर्न विल ऑल्सो बी इन द फ्यूचर. सो कुछ नया पैटर्न नहीं होने वाला है कि पहले 7 पैटर्न 7 टाइप के 7 पैटर्न ले रहे थे, तो अब बोलेंगे खुदा बाप के भैया हम बोर हो गए, अब तुम 3.5 के पैटर्न पे चला दो. तो ये नहीं हो सकता है.
God chose seven and he is going to keep his word. तो सेवन पैटर्न को समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि डैनियल मैंने अपलोड किया अपने चैनल पे डैनियल 70 वीक्स डैनियल्स फाइनल वीक। इसके पहले वाले हफ्ते में मैंने अपलोड किया है उस वीडियो को। वो वही है जब वो एग्जैक्टली आपको बताएगा। वो आप उस वीडियो को जाके देखिए मेरे चैनल पर और वो आपको एग्जैक्टली बताएगा। वो जो वीडियो है 70 वीक्स ऑफ डैनियल वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि एंटी क्राइस्ट के समय क्या होगा। क्योंकि उसमें नेबुकदनेस्सर जो किंग था उस समय इजरायली लोगों को कितनी परेशानी हो रही थी, इजरायली लोग कितने बार लॉ ब्रेक कर रहे थे और उसके बाद कैसे परमेश्वर पिता ने इतने साल दिए हैं और हमें 70 वीक्स मतलब 70 into 7 उतना ही वीक दिया गया है और वो सब खत्म हो चुका है। जितना टाइम परमेश्वर पिता ने दिया था वो सब खत्म हो गया। ओनली द 1/7 इज लेफ्ट, दैट इज 7 year of tribulation is left. So we are basically completely at the end of the 6 days, at the end of the 6 days, and after that there will be 7 year of tribulation. Are you excited? I'm excited. I'm excited because we are going to, because we love God and God loves us. His love is unconditional. तो अगर आपको 70 वीक समझने हैं तो बेसिकली यू नीड टू गो टू माय अदर वीडियो। मैंने लास्ट वीक उसको अपलोड किया है। आप प्लीज 70 वीक्स ऑफ डैनियल फाइनल वीक देखिए, दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज द बाइबल वीक। ये मैंने स्क्रीन पे अभी जस्ट आपको दे देना है सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बाइबल वीक। सो बिब्लिकली 1000 years इज इक्वल टू 1 day। हमारा 1000 years खुदा बाप का 1 day होता है। हम्म? ये चीज़ आपको बहुत समझने की ज़रूरत है वरना सब कुछ वियर्ड टाइप का लगेगा कि क्या बोल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो खुदा बाप का 1 day हमारा 1000 years है। तो अगर परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा तो मे बी ही इज टेलिंग आई एम गोइंग टू कम आफ्टर 2000 years and that's what he said, he will come, he will come। तो हमें पता था कि परमेश्वर पिता 2000 साल बाद आने वाले हैं। तो we are under the 2000 years। So let's get started the Bible week। So right now you can see on the screen 7 days as per the लॉर्ड के हिसाब से 7 days क्या है और 1000 इज इक्वल टू 1 day फॉर द लॉर्ड। तो डे 1 में हम देखेंगे 1000 years। अब 1000 years कैसे हो जाता है डे 1 में परमेश्वर पिता के हिसाब से। तो एडम जब उसे ईडन गार्डन से नीचे दे दिया जाता है तो एडम टू ईनोक is 1000 years। Adam से Enoch is 1000 years and Enoch was raptured। ठीक है। डे 2 में 1000 years Enoch to Noah। तो Enoch से लेके Noah तक judgment day। After Noah there was a judgment as we all know the story of Noah's ark। तो उस समय जजमेंट होता है। पानी 40 days 40 night के लिए जो बारिश होती है उसमें जितने भी लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं परमेश्वर पिता को, जो उस आर्क में जाके उस बोट में जाके नहीं बैठते जो परमेश्वर पिता ने नोआ को बोला था बनाने के लिए नोआ को, तो उस समय बाढ़ आता है और बारिश होती है 40 days 40 night के लिए। आप प्लीज़ अगर किसी को भी नोआज आर्क के स्टोरी के बारे में नहीं पता है तो आप किसी भी ऑनलाइन चैनल पे देख सकते हो उसको। तो या अपनी बाइबल से आप देख लीजिए, बाइबल से उस चीज़ को पढ़िए। पहले आप बाइबल ही पढ़िए, उसके बाद इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मेरी पुरानी आदत है और आज भी वही करती हूँ। मैं कुछ भी चैप्टर में पढ़ती हूँ तो आई जस्ट रीड वंस और आई फर्स्ट गो टू एनी ऑनलाइन चैनल्स और मैं कार्टून टाइप की एनिमेटेड स्टोरीज देख लेती हूँ। उसके बाद आई गो कम बैक एंड रीड माई वर्ड ऑफ गॉड। उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। तो डे 2 में 1000 years होता है ईनॉक टू नोआ and then there is a judgment to peoples and there were so many people in the world was destroyed, only Noah and his family was saved। डे 3 में है 1000 years। अगेन डे 3 1000 years है। वो जो हिब्रू
का दिन बोलते हैं, मतलब हिब्रू लोगों का, इजरायली लोगों का दिन होता है। तब अब्राहम, आइजक, जेकब एंड गॉड अगेन आफ्टर द डिस्ट्रक्शंस, नोआ के बाद जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद अब्राहम, आइजक, जेकब, उसके बाद फिर God starts again. He starts again. After that, on the third day, he starts again. On the first day, Adam and Enoch came, and Enoch was raptured. Second day, Enoch and Noah. At the end of the Noah, the judgment came. Day 3,000 years, Abraham, Isaac, Jacob came, and God started it again. Day 4, 1,000 years, again kingdom of Israel was made, means David became as a king. And then after David 3.5 years के लिए यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए, पैदा हुए, और उनका he was crucified, and then he woke up again. तो उसके बाद जब वो resurrected, when Jesus was resurrected, he just went. तो जब वो यीशु मसीह चले जाते हैं लेके आज तक, we are at the church age. तो basically fifth और sixth day है 2000 years. तो 2 दिन को हम एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के जाने के बाद अभी तक उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, तो अब होगा, अब रैप्चर होगा. तो it is total of 2000 years. Church is 2000 years, fifth or sixth day. So we are basically at the end of the sixth day. उसके बाद church है, and the final week, that the last 7 year of period is still left. So हम फिफ्थ डे कंप्लीट कर चुके हैं, और अब सिक्स डे के एंड में फाइनल वीक होगा, और उसके पहले रैप्चर होगा. गॉड विल टेक अवे हिज ब्राइड, दैट इज हिज चर्च. एंड on the seventh day, you can see on the screen right now, on seventh day, it's 1,000 years Christ millennium. God is going to come, Jesus is going to come on earth, and he is going to reign on earth for 1,000 years. So that will be on the seventh day. That will be on the seventh day. तो basically जो ये 7 दिन है, यीशु मसीह के हिसाब से ये 7 दिन है, खुदा बाप के हिसाब से ये 7 दिन है, लेकिन हमारे लिए ये it's going to be 7,000 years, but for us it will not be 7,000 years, because we are going to be raptured. The church is going to rapture at the end of the 2,000 years. At the end of 5-6th day हम rapture हो जाएंगे. Then comes the 7 year period. Then comes um, Christ millennium, the reign of Christ. So we people ask कि ये रैप्चर क्या होता है. तो रैप्चर का मतलब तो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किया. हाँ, रैप्चर के बारे में आपको वीडियो देखनी है तो वो मेरा थर्ड या फोर्थ वीडियो है, आप प्लीज़ उससे जाएं, देखिए रैप्चर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, so that you will be able to understand it more properly. So we will go with here with uh, day 1 and 2. Day 1 और 2 में क्या है, तो हम अभी देखेंगे पैटर्न ऑफ गॉड. गॉड ने हमेशा एक ही पैटर्न, 7 का पैटर्न चूज किया है. तो नाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू सी द पैटर्न ऑफ गॉड इन 7. So I hope you have your Bible with yourself. Please take Genesis chapter 1 verse, Genesis chapter 2 verse 1. तो मैं ये स्क्रीन पे भी डाल दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. बेसिकली इफ यू आर आउटसाइड, यू डू नॉट हैव योर बाइबल विथ योरसेल्फ, you can basically see right now. So Genesis chapter 2 verse 1, and so the whole universe was completed. By the seventh day, God finished what he had been doing and stopped working. So here comes, here बीच में क्या आता है, 7. By the seventh day. So यहाँ पर भी God ने 7 day में world को create किया है. World was created in 7 day. Everybody knows. The one who believes in Christ, the one who believes in Bible, they know that world was created in 6th day, and 7th day God rested. उसके बाद ये पहला था जो 7 के पैटर्न में है, तो 7 डेज में गॉड ने क्रिएट किया. सेकेंडली वी विल रीड जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 15. जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 15. I hope you can see on the screen right now. But the Lord answered, no. If anyone kills you, 7 lives will be taken in revenge. ये जो वर्स है, जो केन को अगर कोई मार देता
तो परमेश्वर पिता ये कहते हैं कि अगर केन को कोई मारेगा, उसके आगे में भी आप पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है केन को अगर कोई मार देगा तो उसको सेवन लाइव्स विल बी टेकन इन रिवेंज। तो रिवेंज में गॉड विल टेक अवे सेवन लाइव्स। तो यहाँ भी सेवन वर्ड आता है, सेवन के पैटर्न में आता है। गॉड इज टेकिंग सेवन लाइव्स। फर्स्ट he said that he created the world in 7 days. He created the world in 7 days. Second, again he chose the number seven, and Cain 7 times vengeance हुआ है। 7 times God said that if anyone kills Cain, तो 7 लोगों की जीवन को लिया जाएगा। तो वो वहाँ भी लॉर्ड चोज सेवन as a pattern, as his pattern. He showed that I'm going to be, very realistic, I'm going to be very practical, and I'm going to choose and show them। और ये अभी तक 7 चल रहा है। तो सेकेंडली थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 24। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 24, ये स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है, फिर से आप उसे चेकआउट कीजिए। If 7 lives are taken to pay for killing Cain, 77 will be taken if anyone kills me। ये कौन बोल रहा है? ये लेमेक बोल रहा है। लेमेक कह रहा है, कह रहा है कि केन के समय में अगर 7 लाइफ, केन को अगर कोई मारने वाला होता तो मार देता तो उसको उसमें उसके अगेंस्ट 7 लाइफ्स दिया जाता। लेकिन अगर मेरे को कोई मार देगा, इफ एनीवन किल्स me, 77 will be taken। तो 77 लोग, 7 into 7। So again God is saying, that's what I'm telling। Daniel 70 वीक के बारे में आपको जानना है, इसके ये सब चीज़ों के बारे में अगर जानना हो तो Daniel 70 वीक जानना जरूरी है। वो आप यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल पे जाए, उसे चेक कर ले। तो यहाँ भी God is taking 7 का पैटर्न, 70 into 7। So that is Daniel's 70 weeks। तो 70 का पैटर्न यहाँ भी लेता है, 7 का पैटर्न यहाँ भी ले रहा है। अगेन हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 25। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 25। When Methuselah was 187, he had a son Lamech, and then lived another 782 years. He had other children and died at the age of 969। And Genesis, you can see Genesis 5 verses 18। When Jared was 162, he had a son Enoch। तो 5:18 में लिखा हुआ है, जेनेसिस 5:18 में लिखा हुआ ईनॉक वाज द 7th जनरेशन। यहाँ भी परमेश्वर पिता 7 को यूज करता है। ही टुक ईनॉक एंड 7th जनरेशन वाज ईनॉक। आप इस पर अपने बाइबल पे काउंट कर सकते हैं। इसमें डिसेंडेंट और यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि कौन किससे बॉर्न हुआ है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो ईनॉक पे जाकर के ये 7th जनरेशन आता है। एंड देन देयर वाज अ रैप्चर। और यही सेम पैटर्न इज गोइंग टू हैपन विद अस। Enoch was there and there was rapture happened, and Enoch was 7th generation। We are at the end of age and we will be raptured। God is going to take away his bride, his church। So be aware, don't sleep, be aware, God is going to come। और उसके बाद अगेन हम 7 का पैटर्न में हम देखेंगे। तो ये गॉड के पैटर्न के बारे में बात हो रही है कि हमेशा परमेश्वर पिता 7 या 70 into 7, दैट इज दैनियल फाइनल वीक, दैनियल 70 वीक। मतलब 7 का पैटर्न कैसे, जो सेम पैटर्न है वही पैटर्न अभी भी फॉलो होगा जो ओल्ड टेस्टामेंट में हुआ था। तो हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 2। जेनेसिस यहाँ नोआ के बारे में बताया गया है। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 2। तो व्हाट गॉड सेड, फ्लड आने के पहले, The Lord said to Noah, Go into the boat with your whole family. I have found that you are the only one in the whole world who does what is right. Take with you 7 pairs of each kind of ritually clean animal, but only 1 pair of each kind of unclean animal. Take also 7 pairs of each kind of bird। So basically we are going to read up to 2, 1 to 2। तो फर्स्ट थिंग इज गॉड व्हाट ही सेड। यहाँ भी 7 के पैटर्न में लिया है। आप परमेश्वर पिता कहते हैं नोआ को कि तुम 7 तरीके के रिचुअली क्लीन एनिमल ले लो। तो ही सेड ओनली वन इन द वर्ल्ड
well, take with you 7 pairs of each. 7 pairs of, तो बेसिकली 7 पेयर का मतलब 14 एनिमल्स। हम हमेशा पुराने जब हम लोग छोटे थे तो कोई भी अगर नोआ की कहानी सुनाता था तो सात हर एक तरह का जानवर दो दो करके जा रहा है, एग्जैक्टली वो नहीं है। 7 पेयर ऑफ क्लीन एनिमल्स एंड 1 पेयर ऑफ अनक्लीन एनिमल्स। रिचुअली जो उस समय का रिचुअल था, ये कल्चर था, उसके हिसाब से 7 पेयर ऑफ क्लीन एनिमल ले लीजिए आप। तो 7 पेयर मतलब 14, दैट शुड बी अ 14 एनिमल्स एंड क्लीन एनिमल्स एंड 7 unclean animals. So ये था, यहाँ भी God is saying 7 pair. God is using 7 as his pattern. The last we will see about his pattern is Daniel chapter 7 verses 4. Daniel नहीं है, Genesis chapter 7 verse 4. 7 days from now, I am going to send a rain that will fall for 40 days and nights in order to destroy all the living beings that I have made. यहाँ भी परमेश्वर पिता ने 7 दिया। जब परमेश्वर पिता उसको नोआ को बता रहे थे कि तुम इतने क्लीन और अनक्लीन एनिमल ले लो, 7 पेयर के क्लीन और 1 पेयर के अनक्लीन एनिमल ले लो, तो उस समय ये भी बताते हैं कि जब तुम ये सब कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आज से लेकर के 7वें दिन के अंत में मैं फिर ऐसी बारिश करूंगा जो 40 दिन और 40 रातों को चलेगी। तो बेसिकली यहाँ भी गॉड इज यूजिंग हिज 7 पैटर्न ऑफ 7। तो बेसिकली गॉड यूजेस 7 एंड आई बिलीव दैट गॉड्स फेवरेट नंबर इज 7 बिकॉज ओल्ड टेस्टामेंट में आप बहुत जगह रेफरेंसेस देखोगे, आपको दिख जाएगा कि 7 का पैटर्न के हिसाब से गॉड यूज्ड। एंड गॉड इज सो वंडरफुल, ही इज सो ब्यूटीफुल एंड ही इज सो डिसिप्लिन्ड, ही इज सो डिसिप्लिन एंड पैटर्न एंड द सेम पैटर्न। दैट्स व्हाट कि ओल्ड टेस्टामेंट तो जो होने वाला है वो सारा पैटर्न है, वो 800 रेफरेंसेस है, आप चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वाज द पार्ट 1 फॉर रेवलेशन चैप्टर 1। पार्ट 1 का था, मैं बहुत ही स्लो चलूँगी, मे बी ये पार्ट 2 और 3 भी हो सकता है। मैं बहुत स्लो चलूँगी ताकि आप लोग को धीरे 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 समझ आए कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो दिस वाज अ वीडियो एंड आई होप दैट यू लाइक्ड इट। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगी इसको। फर्स्ट इज दैट रेवलेशन इज रिटन बाय जॉन ऑन Patmos Island at the end of the first century। एंड सेकेंडली एपोकलिप्टो है, ये अनवेल करने वाला है, रेवलेशन अनकवर करेगा बहुत सारी चीज़ों को, दैट यू विल बी एबल टू नो सी द ट्रूथ दैट गॉड इज जीसस क्राइस्ट इज द ओनली गॉड दैट यू शुड हैव बिलीव्ड बिफोर इटसेल्फ। वो बहुत ये अनवेल होने वाला है, अनकवर होने वाला है ये रेवलेशन में। और रेवलेशन में आपको पढ़ना है तो पहले अपनी बाइबल जाके पढ़िए, वहाँ पर 800 रेफरेंसेस है रेवलेशन के बारे में। सो गो एंड फर्स्ट रीड योर बाइबल। रेवलेशन के 2 एस्पेक्ट है, पहला रीड योर बाइबल विथ योरसेल्फ, और सेकंड एस्पेक्ट है कि ऐसे इंसान से मिलिए जो आपको रेवलेशन को इंटरप्ट करके दिखाएगा, इंटरप्रेटेड करके दिखाएगा, आपको उसको आपको उसको समझा करके दिखाएगा कि एग्जैक्टली रेवलेशन क्या है और रेवलेशन में खुदा बाप क्या बोल रहा है। उसके बाद अल्फा ओमेगा के बारे में हमने देखा, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज ओमेगा। ओमेगा इज अल्फा इन हिब्रू इज sacrificial ox, and omega in Hebrew is tau, which means cross, and Jesus Christ was omega, alpha and omega, the one who was sacrificed on the cross। Amen, yes। and उसके बाद हम देखते हैं there is a revelation is divided into 3, revelation is divided into 3 so that you will be understanding what is revelation को आपको कैसे पढ़ा जा सकता है, या revelation क्या समझाना चाहता है। तो पहला है revelation में what John saw already, and second what John is seeing right now, और उसके बाद third है what is going to happen, क्या होने वाला है, मेटाटाओ, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। उसके बाद 7 पैटर्न, परमेश्वर पिता का पैटर्न हम फिर देखा हम लोगों ने कि परमेश्वर पिता पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड डैनियल 70 वीक एंड डैनियल्स फाइनल वीक। So you can go on to my other videos
I have uploaded Daniel 70 week. You please go and check out that video. उसके बाद मैंने देखा, हम लोगों ने देखा है पैटर्न सेम ही होने वाला है, 7 वीक का पैटर्न होने वाला है। और बाइबल व्हाट इज बाइबल वीक, व्हाट इज बाइबल वीक अकॉर्डिंग टू गॉड। 7 डेज कैसे उन्होंने कंप्लीट किया अपना, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ उनका, 7 डे कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टिल देयर इज अ 1000 years of millennium and 7 years of tribulation is still left, because we are living in church age, and after that we are going to be raptured with Christ. So according to God, 1000 years is equal to 1 day. For God it's 1 day, for us 1000 years है। ये हमने देखा द बाइबल वीक, एंड सेकेंडली वी सॉ day 1 and day 2 पैटर्न ऑफ गॉड। तो day 1 में और day 2 में क्या होता है, तो अब तो नोआ तक हम लोगों ने देख लिया है। जब आप बाइबल वीक अभी आप देखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि द बाइबल वीक, तो day 1 में उसमें एडम टू इनॉक है, day 2 में इनॉक टू नोआ है। तो बेसिकली हमने 7 का पैटर्न देखा है, क्रिएशन इन 7 days, केन 7 lives has to be taken, Lamech का 70 into 7 lives will be taken if somebody kills Lamech. Then Enoch came. Enoch was 7th generation and he was raptured. And then Noah came, and Noah, what God said about the animals, what type of animals he has to take. And then after how many days? It's seven. After 7 days, and there was a flood. 40 days of, and 40 nights of flood was there. So this is day 1 and day 2. So basically, guys, this was day 1 and day 2. day 3 day 4 मैं next video में upload करूँगी। day 3 day 4 maybe I will take day 5 also, उसमें क्या होता है। तो अभी काफ़ी रेफरेंसेस थे, इसलिए मैंने काफ़ी इसको शॉर्ट रखा है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप इस वीडियो को फिर देखें, समझे, बाइबल अपना खोले और उसको कोरिलेट करे। और आप ओल्ड टेस्टामेंट में डैनियल 70 वीक को पहले समझे, डैनियल्स 1 वीक मतलब डैनियल्स फाइनल वीक को आप समझे, so that you will be able to understand rapture, you will be able to understand the final year of a final week, that is 7 year of tribulation। तो आप पहले day 1 और day 2 को अच्छे से समझ ले, आप रेफरेंसेस करें, घर जाएं, घर में इसको बाइबल को पढ़े, अपने बाइबल को खंगाले थोड़ा, और मेडिटेट करने का कोशिश करें, और उसके बाद फिर you will be able to understand Revelation's first chapter. So this was the video where I introduced about Revelations, and we talked about the Bible week, we talked about Alpha and Omega, we talked about day 1 and day 2। तो इसके बाद वाले चैप्टर में, इसके बाद वाले पार्ट में मैं day 3 day 4 को अपलोड करूँगी। So here I stop. Thank you for watching the video. आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो please kindly go back and watch the video again. And I pray that God is going to bless me, and I pray that God is going to bless you, anyone who is watching right now or who will be watching later. So I bless God for giving me this opportunity. I give all my glory and honor to Parmeshwar Pita, कि उन्होंने ये मौका दिया, और उन्होंने मुझे ये एक ऐसा थॉट और आइडिया दिया कि रेवलेशन अपलोड करो, रेवलेशन यूट्यूब चैनल करो, एंड टॉक अबाउट रेवलेशन, द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज वी आर लिविंग एट द end of this world. People, those who believe in God, church is going to be raptured. So this is the time where you can repent. This is the time you can come back to God and ask Him sorry, that God, I love you, and I want to, whatever you are saying, I believe that there is a revelation which is going to happen. So we are going to pray. I'll pray. We love you, and we bless your name, God, Jesus. Thank you for your presence, and I really believe that it will help. ये आपको help करेगा, और आप रेवलेशन को, और इसी के कारण इस वीडियो के थ्रू आप बाइबल जाएंगे, पढ़ेंगे, और आपका उद्धार होगा, और आप सेव रहेंगे। So thank you for watching the video, and thank you for taking your time. I hope you will like it, and hope God will help you to understand, and the Holy Spirit will be there with you, so that you will be able to understand it properly. So take care. Bye bye. Thank you for your time. We'll meet in the second video. Bye bye.